Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we will discuss the determinants of demand. Now in the previous video, I have already discussed the introduction to demand and the law of demand. If you haven't watched it yet, I am giving the link in the description box. You can watch it from there. Okay, now let's get started. Now the determinants of demand are the factors which actually affect the demand for the commodity in the market. मतलब कि determinants वो सारे factors हैं जो किसी भी commodity की market में कितनी demand होगी उसको affect करते हैं. तो उसमें सबसे पहला जो point आता है that is the price of the commodity. Right? Now the price of the commodity actually determines कि कितनी quantity of commodity market में demand होगी. एज अ रैशनल कंज्यूमर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो हम लोग उसको कम डिमांड करते हैं, एंड अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम है तो हम लोग उसको ज्यादा डिमांड करते हैं. राइट, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड. वी कैन राइट इट एज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाई, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज लेस, and when the price of the commodity is low, the demand for the commodity is high. It will be better if you start writing down all these points, ताकि बाद में आपको जब रिविजन करना हो तो ये शॉर्ट पॉइंट से आप रिविजन कर सको. ठीक है, सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाई, then the demand is less, and when the price of the commodity is low, then the demand is high. So there is an inverse relation between the price of the commodity and the demand of the commodity. Okay, and this relation between the price and the demand is actually known as the price demand. So what is price demand? Price demand is the relation between the price of the commodity and the demand for the commodity. Okay, I hope first point is clear. Now coming to the second point. The second determinant of demand is the income of the consumer. Now it is very obvious कि हमारी जितनी भी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हम कमोडिटी को डिमांड करेंगे. अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, अगर हमारी इनकम कम है तो हम लोग कम डिमांड करेंगे. बट इन इकोनॉमिक्स वी हैव डिवाइडेड द कमोडिटी इनटू 3 पार्ट्स, एंड हर एक कमोडिटी का एक अपना फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि उसको हम लोग इनकम इंक्रीज होने से ज्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे. सो द फर्स्ट सब हेडिंग और फर्स्ट सब पॉइंट of the income of the consumer is for the normal goods. अब normal goods क्या होते हैं? तो normal goods have been defined as those goods the demand for which increases when the income of the consumer increases. मतलब कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो जिस कमोडिटी की डिमांड हम लोग मार्केट में इंक्रीज करते हैं दे आर नोन एज दी नॉर्मल गुड्स. ठीक है, सो वी कैन राइट इट डाउन एज द डिमांड विल इंक्रीज when the income will increase and the demand will fall when the income will fall. Right, now the example of the normal goods is refrigerator, TV or any such commodity such as furniture, etc. So all these commodities, furniture, television, etc. are the example of normal goods. Okay, now for the normal goods, if I draw a graph, I have already told you that while making a graph you must mention the x-axis, the origin and the y-axis. Now here we are comparing the two quantities, which is the quantity of the commodity demanded and the income of the consumer. So since when the income of the consumer increases, the demand is also increasing, so it is an upward sloping curve. Okay, for the normal goods the curve is upward sloping. See, when the income is high, the quantity demanded is also high, and when the income is low, the quantity demanded is also low. Okay, now the second kind of good is the inferior good. Now what actually inferior good is? Inferior good is defined as those goods the demand for which falls with the increase in the income of the consumer. मतलब कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम जिस कमोडिटी की डिमांड कम कर देते हैं वो होता है inferior goods. ठीक है, जैसे कि in India the inferior goods are categorized, maize are categorized as inferior goods. मतलब कि maize को हम inferior goods मानते हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब इनकम हमारी बढ़ेगी, when the income will increase, the
demand for inferior goods will fall, and when the income of the consumer will fall, the demand for inferior goods will increase. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज करो कि एक पुअर फैमिली है, वो पहले मेज खाती थी. नाउ व्हेन द इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेस, तो क्या होगा कि वो लोग सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि राइस या व्हीट कंज्यूम करेंगे. अब क्योंकि खाने की तो एक लिमिटेशन है, देयर इज अ लिमिटेशन टू ईट, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ ईटिंग. सो अगर हम लोग एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो हमको दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन कम करना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, द कंजप्शन ऑफ मेज विल फॉल. ओके, so coming back to the curve of inferior goods, again I am telling you x-axis origin, y-axis will mention the quantity and we are comparing it with the income. Okay, now the graph for the inferior goods is backward sloping graph. ठीक है, why it is backward sloping? क्योंकि एक टाइम तक तो हम अपना मेज का ही डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ साथ जो कमोडिटी हम लोग एक्चुअली कंज्यूम करते थे उसी को पहले ज्यादा कंज्यूम करेंगे. बट ग्रेजुअली क्या होगा, व्हेन वी मूव टू दी सुपीरियर गुड्स, तो जब हम जो इंफीरियर गुड्स है उसका डिमांड हम मार्केट में कम कर देंगे. तो लाइकवाइज सी, व्हेन द इनकम इज लो द क्वांटिटी डिमांडेड इज हाई, एंड व्हेन द इनकम इज हाई द क्वांटिटी डिमांडेड इज लो. अंडरस्टूड? Now the third type of good which comes under the income of the consumer is the necessity, the inexpensive goods of necessity. अब इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या कमोडिटीज आती हैं, तो वो सारी कमोडिटीज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दे कम अंडर द इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटी. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, टूथपेस्ट, सोप, दीज ऑल कम अंडर द नेसेसिटी. तो इसमें क्या होता है कि वट एवर बी द इनकम, व्हेन आई डू नॉट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विद आइदर द इंक्रीज इन इनकम और द डिक्रीज इन इनकम, दे आर नोन एज गुड्स ऑफ नेसेसिटी. ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज करिए कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि आप खाने में ज्यादा नमक डालेंगे, आप खाने में तो उतना ही नमक डालेंगे जितना पहले डलता था. तो इनकम भले इंक्रीज होगी, भले हम 10% अपनी कमोडिटी का जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देंगे, बट विल नॉट इंक्रीज इट एट अ हाई रेट. कुछ देर के बाद जाके वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स ओरिजिन, वाई एक्सिस, this is the quantity, this is the income. Now for the necessity goods, the demand increases first and then it becomes constant. So I am writing IE, which is the inexpensive goods. Okay, now this was for the income of the consumer. Now coming back to the third point, which is the consumer taste and preferences. Now actually consumer taste and preferences का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको किसी चीज, किसी कमोडिटी के लिए प्रेफरेंस ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसका डिमांड बढ़ा देंगे. और अगर आप उस कमोडिटी को कम प्रेफर करते हैं तो आप उसका डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में कम कर देंगे. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आज के टाइम पे क्या होता है कि पीपल आर बिकमिंग मॉडर्न, तो वो लोग क्या करते हैं कि आज का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग सामान परचेज करते हैं. तो अगर क्रॉप टॉप का ट्रेंड है या अगर नाइकी के शूज का ट्रेंड है, तो हम लोग जो पुरानी कमोडिटीज यूज कर रहे थे उसकी डिमांड को कम करके हम अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दूसरी कमोडिटीज को प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको नोट लिखना है तो आप नोट लिख सकते हैं. यू कैन राइट डाउन द पॉइंट कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. And under the consumer taste and preference, if your taste and preference is in the favor of the commodity, तो उसकी डिमांड आप मार्केट में इंक्रीज कर देंगे. एंड इफ योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अगेंस्ट द फेवर ऑफ कमोडिटी, तो आप उसकी डिमांड मार्केट में कम कर देंगे. अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ पॉइंट. The fourth point says that the demand for the commodity depends upon the price of related goods. इसको हम लोग क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं. मतलब कि जब हम लोग दो अलग अलग कमोडिटीज को कंपेयर करते हैं और दो अलग अलग कमोडिटीज में किसी एक कमोडिटी की डिमांड की इंक्रीज या डिक्रीज को जब हम लोग स्टडी करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड. अब इसमें भी गुड्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are jointly used to satisfy the same type of need। मतलब कि वो गुड्स जो कि जॉइंटली यूज किए जाते हैं किसी एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अगर मार्केट में पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो हम लोग कार की डिमांड कम कर देते हैं, बिकॉज हमको पता है अगर हम कार पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमको रेगुलर बेसिस पे पेट्रोल में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल राइजेस द डिमांड फॉर द कार इन द मार्केट डिक्रीजेस। लाइकवाइज अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो कार तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के थ्रू हम लोग कार को पे कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको हम लोग जॉइंटली यूज करते हैं। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन दी प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दी अदर कमोडिटी। इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? एक्स ओरिजिन वाई। सपोज आई एम टेकिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल ओवर हियर and the quantity of car over here and the price of petrol। तो what did I tell you? जब पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होगा तो हम लोग कार की डिमांड कम कर देंगे, और जब पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो हम कार की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। इसका प्राइस ज्यादा है तो इसकी डिमांड कम है, इसका प्राइस कम है तो इसकी डिमांड ज्यादा है। सो दिस शोज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड टाइप ऑफ गुड विच इज द सब्स्टिट्यूट गुड। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? तो यू मस्ट हैव हर्ड कि हमारे क्लास में सब्स्टिट्यूट टीचर्स आते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? जब एक टीचर एब्सेंट होती है तो उसके बदले में दूसरी टीचर आती है। तो वैसे ही कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी केस है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वन अनदर टू सैटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड। मतलब कि हम एक ही टाइप ऑफ नीड को सैटिस्फाई करने के लिए अगर दो अलग अलग कमोडिटीज को यूज कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टी एंड कॉफी। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो सपोज करो कि मार्केट में टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो जो लोग टी कंज्यूम करते थे वो लोग अब टी से कॉफी में शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों कॉफी में शिफ्ट करेंगे? क्योंकि अब उनको टी जो है वो एक्सपेंसिव लग रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा? व्हेन द प्राइस ऑफ द टी राइजेस द डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द टी फॉल्स, जब प्राइस टी की कम हो जाएगी तो कॉफी अब लोगों को एक्सपेंसिव लगने लगेगी, तो वो लोग कॉफी से टी में शिफ्ट कर जाएंगे, जिसके वजह से जो टी है उसका डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इसमें यू कैन राइट इट डाउन दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, एंड इसमें यू कैन राइट इट डाउन दैट देयर इज अ direct relation। Now direct relation मतलब कि first we need to mention the details। This is the quantity of suppose tea, quantity demanded of tea, and this is the price of coffee, ठीक है। तो what did I tell you? जब कॉफी का प्राइस ज्यादा होगा तो टी की डिमांड ज्यादा होगी, और जब कॉफी का प्राइस कम होगा तो टी की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। तो दिस इज द डिमांड कर्व। ये देखो, जब प्राइस ऑफ द कॉफी इज मोर द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज हाई। व्हाई? बिकॉज प्राइस कॉफी का ज्यादा है, तो जो लोग कॉफी प्रेफर करते थे वो लोग अब कॉफी से टी में शिफ्ट कर जाएंगे, बिकॉज टी उनको लेस एक्सपेंसिव लग रही है। एंड जब कॉफी का प्राइस कम है तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी का प्राइस कम है तो पहले तो कॉफी के जो यूजर्स थे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, एंड मोर ओवर जो टी कंज्यूम करते थे अब वो भी टी से कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। फिफ्थ पॉइंट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। जैसे सपोज करो कि आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है,
तो अभी आप उसको परचेज नहीं करोगे। बेस्ट एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली, जब दिवाली आने वाली होती है और उसके पहले अगर आपका फोन टूट जाता है तो आप क्या करते हो, 1 मंथ के बाद दिवाली है, पेरेंट्स बोलेंगे कि चलो 1 मंथ के बाद ऑफर पे मिलेगा, देन वील परचेज यू अ गुड फोन। ओके, तो जब किसी कमोडिटी का हम फ्यूचर में प्राइस राइज एक्सपेक्ट करेंगे तो उसका डिमांड हम अभी इंक्रीज कर देंगे। एंड अगर हम किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी हम उसका डिमांड रोक देंगे ताकि हम फ्यूचर में उसको कम प्राइस में परचेज कर पाए। Understood? So whenever a consumer expects a rise in the price of the commodity, he or she will purchase more of the commodity in the present time, and if he expects a fall in the price of the commodity, he'll purchase it later, he'll postpone his demand for the present time. Okay, so we can write it down as consumer's expectation. When he expects a fall in price, तो वो अभी डिमांड डिक्रीज कर देगा। एंड व्हेन ही एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस, तो वो अभी अपनी डिमांड को बढ़ा देगा ताकि फ्यूचर में उसको हाई प्राइस में परचेज ना करना पड़े। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में both the term have their own significance. See, size का मतलब होता है कि एक सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, that is the size of the population. Size and composition of population. ठीक है, मतलब कि एक सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं वो उसका साइज है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, और अगर उसका साइज कम है तो मार्केट में डिमांड कम होगी। ठीक है, ना दिस वाज अबाउट द साइज, मतलब कि व्हेन साइज में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द साइज इज मोर द डिमांड इज आल्सो मोर, एंड व्हेन द साइज इज लेस द डिमांड इज आल्सो लेस। राइट, नाउ कमिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब कि किस टाइप के लोग इस कंट्री में या एक एरिया में रहते हैं। जैसे कि एक एरिया में ज्यादा ओल्ड पीपल रहते हैं या ज्यादा वुमेन रहती है या ज्यादा चिल्ड्रन रहते हैं। और वैसा बात है कि अगर एक सोसाइटी में ज्यादा चिल्ड्रन रहते हैं तो ज्यादा डिमांड क्या होगा? चॉकलेट्स का होगा, बैट बॉल ये सब का होगा। बट इफ द ओल्ड पीपल आर लिविंग इन द सोसाइटी तो क्या चीज का डिमांड होगा? न्यूज़पेपर्स का डिमांड होगा, थोड़ा एथिकल चीजों का डिमांड होगा मार्केट में। तो the demand depends upon the type of the people that are living in the society. तो composition of population में the type of people है, अगर children ज्यादा हैं तो toys का डिमांड होगा, अगर females ज्यादा हैं तो cosmetics का डिमांड ज्यादा होगा मार्केट में। Okay, now when you explain this point from in your examination, you have to write it in two separate paragraphs, because each of these terms have their own importance. Now the size, for the size you have to write a single paragraph in which you have to mention कि population बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगी। एंड फॉर द कॉम्पोजिशन यू हैव टू मेंशन कि किस टाइप ऑफ पीपल, कौन से टाइप ऑफ पीपल सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका डिमांड क्या होगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज द लास्ट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम लोग एक इसके पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था दैट वाज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इफ देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और देयर इज अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि सबको ऑलमोस्ट सेम इनकम मिलती है। तो उससे क्या होगा कि अगर सबको ऑलमोस्ट सेम इनकम मिलेगी तो लोग ज्यादा नेसेसिटी आइटम्स को डिमांड करेंगे। बट अगर अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो क्या होगा कि रिच पीपल मार्केट में ज्यादा होंगे, तो ड्यू टू मोर ऑफ रिच पीपल इन द मार्केट द डिमांड फॉर लग्जरियस आइटम विल इंक्रीज। जैसे कि हमारे कंट्री में है, इन इंडिया
there is more demand for the luxurious item because हमारे country में unequitable distribution of income present है. So you can write it down as for your revision that if there is equitable distribution of income, then the demand for necessary items are more, and when there is unequitable distribution of income, then the demand for luxurious item is more. Okay. So out of the 7 points which I have explained you today, the first 5 points were the determinants of individual demand and the last 2 points were the determinants of market demand. तो अगर एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि आपको determinants of demand लिखने हैं, अगर वहां मेंशन्ड है कि मार्केट डिमांड लिखना है तो यू शुड प्रेफर these 2 points, and अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड लिखना है तो जो फर्स्ट 5 points मैंने एक्सप्लेन किए थे, you can write them. Okay, this much for today. We'll meet in the next video. Thank you.